जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुकराना सत्संग है। ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੇ, ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਲਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੰਡਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਕਢਵਾਏ ਸਨ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਵਾਏ, ਜੋ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਨ ਜੂਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੰਦਰ ਵਾਸਤੇ, ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜੋ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 777 ਦੀ 9 ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਕੁੜੀਏ, ਤੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੀ। 2 ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਮਨਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸਭ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ਆਂਟੀ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 2 ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ 1-2 ਦਿਨ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੋ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ ਇੰਨੀ ਅੜੇਲ, ਅਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੀ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਾ ਖੋਈ ਲੱਗਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੁਛ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਲਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਂਟੀ ਹੁਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਬਦ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਓ।
ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਪੁੱਤ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਾਤੀ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਅਸੀਂ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਪੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਸ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣ ਪਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਮੰਮਾ ਮੰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈਣ ਡੱਬੀ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਆਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹਨ, ਗੱਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये कल का मेरा शुक्राना सत्संग है, जो मेरे साथ प्रभु ने चमत्कार किए। प्रभु जी पूरे दिन से, मैंने बताया था कि यूपी में साक्षात्कार भगवान आए हुए हैं, महाशिव हैं। डाउट ना करें, बिल्कुल भी अपने भगवान पे डाउट ना करें, अपने भगवान को माने, मांगे नहीं, उनके चरणों की सेवा मांगे अगर मांगनी है तो, क्योंकि तुम्हें मानव जन्म में उनके चरणों की साक्षात्कार सेवा मिल रही है और हम मांगने में लगे हुए हैं, भटक रहे हैं, तो उनकी सेवा मांगिए, उन्हें भोग लगाइए, उनके चरण दबाइए। तो संगत जी, हम बात करते हैं कल की। अब मैंने बताया था मेरे परिवार को जीवन दान दिया है, तो मेरे प्रभु को जैसे ही सब भोग लगे उसके बाद मैं थोड़ा थक गई, मंदिर गई, नारियल वगैरह चढ़ा के आई। तो उसके बाद मैं थोड़ा लेट गई। लेट के ही मैं सत्संग सुन रही थी। गुरुपा कंटिन्यूसली सत्संग सुनाते जा रहे थे। डर भी था बेटे का दिमाग में बहुत ज़्यादा कि एक ही बच्चा बचा है, किस तरह, तो थोड़ा नींद भी लगी। उसी बीच में एकदम से गुरुपा का उस सत्संग में आवाज़ आई तुरंत कि ड्राई फ्रूट का भोग लगा मुझे। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे तुरंत गुरुपा के पास टेबल से उठा के। तो संगत जी, रात में भी थोड़ा डर था कि आज दिवाली की रात है, क्या है, कैसे परिवार, बट गुरुपा का आदेश था कि मैं तेरे नाल खड़ा हूँ, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी संगत जी। तो संगत जी, जब जैसे ही मैं सुबह उठ के फिर अमृत वेला करती हूँ, मैं अपने गुरुपा के चरणों में आती हूँ, उठते ही मैं देखती हूँ उसमें 4 ड्राई फ्रूट्स बचे हुए हैं, बाकी कटोरी फिनिश है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे महाशिव, मेरे महाशिव।
संगत जी फिर मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि सत्संग सभी सुनेंगे, महाशिव से सेवा मांगो। आप महाशिव के पास हो, हम बहुत लकी हैं, हम महाशिव की शरण में हैं। तो संगत जी आज मेरे को गुरुपा ने मैसेज सुनवाया कि उन जो मेरे पास 2 स्वरूप हैं उनके, तो एक में वाकई में ही उनकी आइज चमकती है और वो मुझे देखते रहते हैं हर समय, मैं भी देखती हूँ। मुझे पता है कि मेरे गुरुपा एवरी टाइम वॉच करते हैं। तो संगत जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जो शेयर कर रहे हैं सत्संग को और जो सुन रहे हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बेटे अंकल की तरफ से कोटि कोटि बेअंत शुक्राना, उसे लाइफ ब्लेस करने का, उसका जीवन संवारने का। मेरे पति अंकल की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना उन माँ बाप को जिन्होंने मेरे महाशिव को कलयुग में लोगों का उद्धार करने के लिए भेजा। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आज हम लेते हैं एक ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आज आपको जानकर खुशी होगी कि मेरे परिवार जो दिवाली की रात प्रभु ने बचाया है, तो उसके लिए आज कौन आ रहे हैं यूपी के घर में, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब तो कोई डाउट नहीं है संगत जी आप लोगों को मेरे गुरुपा के बारे में, मेरे शिव के बारे में, मेरे महाशिव के बारे में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे महाशिव। लव यू महाशिव, लव यू लव यू लव यू। कोई तो मैंने ऐसा कर्म किया है कि जो मेरे महाशिव ने हमको जीवन दान दिया है। कोई तो माड़े कर्म तो बहुत हुए हैं, पर कोई अच्छा कर्म भी हुआ है जहाँ महाशिव ने यूपी में आकर परिवार को बचाया है। सारी मेरे भाग्य में जो चीज़ें नहीं थी वो भी लिख दी हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे माई बाप, बेअंत शुक्राना बेअंत शुक्राना। संगत जी ये सत्संग बड़ा होगा आगे जाके, किस तरह ये चमत्कार है मेरे बाबा के। मुझे आधे तो याद ही नहीं रहते संगत जी, इतने चमत्कार है मेरे बाबा के। साक्षात्कार बैठे हैं मेरा महादेव, मेरा महाशिव, मेरा महाशिव। शिव 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 शिव। हर देवी देवता का वास है मेरे शिव में, हर देवी देवताओं को कंट्रोल कर रहे हैं मेरे शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्रवार का शुक्राना सत्संग। संगत जी मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो जाए क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी अभी मेरे को गुरुपा के सत्संग जो मैंने सुने, उन्होंने बोला अभी थोड़ा ये खतरा है, जैसे कि छोटी दिवाली पे मेरे ऊपर किया गया है और बड़ी पे बेटे पे, और आज आई थिंक जो लग रहा है हमारे प्रारब्ध का कर्म है वो हस्बैंड के लिए। तो बट सब ठीक होगा परमात्मा की दुआ से। और बहुत ही कुछ ऐसा है, और भगवान शिव जहाँ साक्षात्कार आते हैं वहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं हो सकती संगत जी, सिर्फ फेथ की बात है, विश्वास की बात है। और अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माई बाप, हमेशा साथ देने का, 24 घंटे पहरा लगाने का। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल साथ निभाने का। तो संगत जी ये मैं 30 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग बता रही हूँ कि किस तरह मेरा बेटा रात में लेट तक घूमता रहा बाहर, जबकि वो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करता है। क्योंकि कष्ट था, गुरुपा ने बताया था कष्ट है उसके ऊपर आज। खैर वो ऐसे ही 11:30 के आसपास आया, खैर वो ठीक ठाक आ गया। जैसे ही संगत जी कल दिवाली की रात सुबह उठते हैं तो मेरे को एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा। तो जैसे ही सुबह उठते हैं संगत जी हैप्पी दिवाली के लिए मैं बाहर जाती हूँ झाड़ू मारने के लिए 5 बजे। तो मेरी नेबर कहती है सुबह ही कि आपको पता है राजेंद्र जी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वेंटिलेटर पे है। तो एकदम आपकी नियर बाई ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं गुरुपा आपके कर्म कटवा के। तो जितने भी गुरुपा के मैसेज आते हैं संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है,
और उसके लिए प्रेयर करें कि उस जिसका एक्सीडेंट हुआ कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं वहाँ भी कोशिश कर रही हूँ कि जल प्रसाद लेके जाऊँ, वो ठीक हो जाए जल्दी से। अब इम्प्रूवमेंट है संगत जी। तो इस तरह संगत जी ऐसा कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में कि इधर का उधर ट्रांसफ़र। फिर पिजन का भी मैंने बताया था कि जब ज़्यादा पे मारण क्रिया के लिए आज मुझे दिव्या जी का जो संदेश मिला वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिला कि रैंप पे कबूतर मिला था और एक जगह चूहा मिला। तो संगत जी ये सब गुरुपा किस तरह हमारे बैड कर्मास को काटते हैं, है ये सब हमारा बैड कर्माज ही, किसी का कोई दोष नहीं है संगत जी इसमें। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माई बाप हर पल साथ निभाने का, बेटे अंकल की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पति अंकल की तरफ से बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब अपने गुरुपा के लिए बस एक लाइन कि तुम ना होते तो क्या होता, तुम ना आते इस मुसीबत में साथ निभाने तो क्या होता मेरे महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना और हर पल साथ निभाने का शुक्राना। शुक्राना दिन का शुक्राना, रात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माई बाप। और किस तरह मेरे गुरु पर प्रैक्टिकल गुरु है, मेरे प्रैक्टिकल महादेव हैं, हर चीज़ प्रैक्टिकल दिखाते हैं। और किस तरह दिवाली पे वो आए हैं, अब पंडित जी में आ रहा है, उन्हीं की प्लानिंग चलती है सारी, हमारी नहीं चलती है। और आज उन्होंने बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश, और वाकई में ही 3 रूप में ऊपर से जब मैं देखती हूँ सुबह तो एक ब्लैक कलर का डॉगी रात में छत पे रहा है और वो देखती हूँ तो सुबह 8:30 के आसपास वो बैठा हुआ था। उसके बाद 2 लोग और आए हैं जिन्होंने जो क्रो के रूप में थे और उन्होंने किस तरह आकर आवाज़ दी है और फिर मैंने उनको खाने को दिया संगत जी। तो उनका जो गुरु जी का जो मेन महादेव का हमारा तात्पर्य है यही है कि वो हर रूप में है, हर कण कण में है, वो हर पत्ते में, हर चीज़ में गुरुपा है। एवरीवेयर मेरे गुरुपा हर जगह है, वो हर जगह है मेरे परमात्मा का वास। वो किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं संगत जी, ये ध्यान रखना, किसी भी रूप में। ये ना समझे संगत जी किस रूप में गुरु पाएंगे, वो किसी भी रूप में पल भर में आपके पास खड़े हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माई बाप का जो मेरे महादेव को पृथ्वी पे लाए हम कीड़े मकोड़ों के बैठ कर मांस काटने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। शुक्राना सब तो बहुत छोटा है, महाशिव आपकी तारीफ हम क्या कर सकते हैं। शुक्राना 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 संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और गुरु जी का आदेश है कि तू अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैंने पहले भी काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं, अभी एक और भी किया है जो अभी नहीं हुआ है शेयर। और गुरु जी का आदेश है कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी तेरे घर पर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया गया है। संगत जी, मुझे काफ़ी दिन से ये सब संदेश आ रहे हैं और मैं काफ़ी परेशान हूँ कि मुझे बार बार क्यों ब्लैक मैजिक के सत्संग आ रहे हैं। गुरुजी ने पहले मुझे हिंट भी दिए थे
कि बेटी ये कोई तेरा अपना है जो तुझ पर ब्लैक मैजिक करवा रहा है। फिर उसके बाद गुरुजी का यह मैसेज था कि बेटी मैंने सारे जो ब्लैक मैजिक किए हैं वो मैं काट रहा हूँ और तुझे न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी का ऐसा संदेश था। फिर उसके बाद अब बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक पर मुझे मैसेज आ रहे हैं। संगत जी, मुझसे बोलने में अगर कुछ भी गलती होती है तो मुझे माफ़ करें। अब गुरुजी का जब ऐसा मैसेज आया तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटी अपने घर की अलमारी देख, उसमें कुछ पड़ा हुआ है जिसकी वजह से तेरे कोई काम नहीं बन रहे हैं। मैंने काफ़ी अपनी अलमारी में ढूंढा भी, मगर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि मैं पहले ये सब कर चुकी हूँ। मुझे कुछ मिला भी था ऐसा सामान जो मैंने बाहर फेंक दिया था, मगर अब फिर से मुझे यही चीज़ आ रही है। अब मैंने बहुत देखा मगर मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मैं काफ़ी परेशान थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आप कोई हिंट दे। फिर मुझे गुरुजी ने एक आंटी के सत्संग में साफ साफ हिंट दिया कि बेटी तेरे घर में एक काले रंग की अलमारी रखी है लोहे की, तू उसमें जाके देख। मैंने ऐसा ही किया और मैं गई, चाबी वाले को बुला के लाई और मैंने ताला खोला क्योंकि उसकी चाबी मेरे पास गुम हो गई थी। एक अंदर की तो थी मगर बाहर की नहीं थी। तो मैंने बाहर का ताला खुलवाया। जब मैं चाबी वाले को बुलाने गई तो मुझे गुरुजी ने बहुत बहुत प्यारे अपने दर्शन दिए। वहाँ पर तितली के रूप में गुरुजी वहीं पर बैठे थे। मैं भी काफ़ी देर उस आदमी का इंतज़ार करती रही तो वहीं पर सामने ही गुरुजी तितली के रूप में बैठे थे और कभी कोई रिक्शा या कोई गाड़ी निकल रही थी तो उसमें जय गुरुजी लिखा हुआ था। गुरुजी मेरे साथ ही है, मैं जानती हूँ। फिर काफ़ी देर बाद, 1-1.5 घंटे बाद वो आदमी आया और मैं उसे लेके घर गई। मैंने अपने कमरे में जाकर वह ताला खुलवाया क्योंकि संगत जी मेरे पास बाहर की चाबी गुम हो गई थी। मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी और ये अलमारी काफ़ी दिन से बंद भी पड़ी थी। ये हमारा एक स्टोर रूम कमरा है, उसमें अलमारी है। फिर उसके बाद मैंने अलमारी खोली और उसकी तिजोरियाँ हैं वो भी खोल के देखी, मगर उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई धागा, ना ही कोई सिंदूर। हाँ, कुछ सामान था उसमें, कोई श्रृंगार का या कोई बालों में लगाने वाली पिन्ने या फिर कान के झुमके आर्टिफिशियल, ऐसी कोई चीज़ें पड़ी हुई थी। अब मुझे जब कुछ नहीं मिला तो मैंने उसी को लेकर इकट्ठा किया और मैं उसे बाहर फेंक आई। मुझे इस सारा काम करने में 1-1.5 घंटा लग गया। फिर संगत जी मैं सामान फेंक के आई, आके मैं नहाई धोई और गुरुजी का नाम लेके बैठी थी। तभी मेरी जो घर की मेड है, बर्तन साफ करने वाली, वो आई और वो रसोई में जाके, किचन में जाके बर्तन साफ करने लगी। जैसे ही वो बर्तन साफ करने लगी, उसके हाथ में एक कांच का टुकड़ा, जो कप था, टूट गया उसके हाथ से और कांच का टुकड़ा उसे हाथ में लग गया। उसे काफ़ी खून बहने लगा। वो थोड़ी सी एजेड भी है और क्या कहते हैं, वो साउथ इंडियन है इसलिए उसको हिंदी ज़्यादा नहीं आता, तो वो बेचारी घबरा गई और घबरा के इधर उधर भागने लगी और अपने हाथ को ऐसे छिड़कने लगी काफ़ी। तो छिड़कने से मेरे घर में, रसोई में, सब जगह खून उगने लगा। फिर वो बैल्कनी में आ गई, वहाँ पे भी हाथ ऐसे ऐसे हिला रही थी। तब मेरी बेटी भागती हुई आई, उसने मुझे बताया। तो मैं जैसे ही भाग के आ रही थी बाहर, तो इतने में वो जो मेड थी वो मेरे कमरे में, बेडरूम में, मंदिर के कमरे में, सब जगह ऐसे हाथ छिड़कते हुए भाग के आ गई और मेरे पूरे घर में जैसे उसने खून ही खून बिखरा दिया। अब ये देख के मैं काफ़ी डर गई। पहले तो मैंने उसे पट्टी बांधी और उसे कहा कि अभी तुम्हें कुछ काम नहीं करना है। उसके हाथ में पट्टी बांध के मैंने कहा
और पैसे दिए कि तुम जाके नीचे जाके वो बैंडेड वगैरह कुछ ले लो। और अपने घर में मैंने उसे डिटॉल वगैरह लगा के और पहले कपड़े से बांध दिया, मगर मेरे पूरे घर में उस लेडीज ने खून के छींटे उड़ा दिए। अब मुझे ये देखकर बहुत ज़्यादा डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा कि ये क्या हुआ, क्या गुरु जी ने ये कोई कष्ट काटा है या फिर ये सब क्या हुआ। और मैं कल से बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा, कि ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। मुझे गुरु जी के काफ़ी मैसेज आ रहे थे, बेटी तेरे घर में ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया हुआ। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मैं खुद भी बहुत बीमार रहती हूँ, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मैंने सोचा कि मैं देखती हूँ गुरु जी का क्या मैसेज है। मैंने देखा तो गुरु जी ने बताया कि बेटी तेरे घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कोई हादसा होने वाला है। ये सुन के मैं रोने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। और मैं काफ़ी कल से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज रक्षाबंधन है, आज सुबह से भी मुझे कुछ नहीं अच्छा लगा। मैं सुबह मंदिर गई, शिव जी महाराज को जल चढ़ाया और पूजा की। मैं आज 5वां सोमवार था, चारों सोमवार भी गई, मगर मेरा मन बहुत खुश था चारों सोमवार। मगर आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। गुरु जी के मैसेज भी ऐसे आ रहे हैं और मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान। बस मुझे गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, और बस मेरे बच्चों को और मेरे पति को ब्लेस करें। उन्होंने कहा है, बेटी मैंने तेरे पति को भी ब्लेस किया, तेरे बच्चों को भी ब्लेस किया, मगर ये सब सब कुछ देख के मुझे बहुत डर लग रहा है संगत जी। इसलिए मैं गुरु पास से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आप रक्षा करें। कोई नहीं है हमारा आपके सिवा। संगत जी कोई आसपास इतना ज़्यादा हमारे साथ कोई भी नहीं है। हमारे खुद के बच्चे भी हमारे साथ नहीं बात करते। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। मेरी गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी आप मेरा सहारा बने। और मैं क्या ही कहूँ गुरु जी, मैं बहुत परेशान। मैं ऐसे मैसेज देख के बहुत डर जाती हूँ। गुरु जी से मेरी अरदास है, गुरु जी मैंने सब आपके हाथ में छोड़ा हुआ है, आप ही अच्छा करें सब। आपसे मेरी यही अरदास है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझे रोज कहते हैं बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर। मुझे बोला है कि तू बेटी हफ्ते के 7 दिन शुक्राना सत्संग कर। मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी इतना ज़्यादा, मगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं गुरु जी के 7 दिन सत्संग करूँ। गुरु जी ने मुझे पहले बताया था कि बेटी तू 7 गुरुवार गुरु जी के अकेली बैठकर सत्संग कर। मैंने वे भी किए। अब मुझे कहा है सेवा रखी है कि बेटी तू गुरु जी के सत्संग कर 7 दिन। मुझसे जो बन पड़ेगा गुरु जी मैं करूँ, मगर मेरे बच्चों को और मेरे पति को आपको ही संभालना है गुरु जी। मेरी भी तबीयत ऐसी ही है, मुझे अस्थमा का प्रॉब्लम है, शुगर भी बहुत बढ़ी हुई है मेरी। अमृत वेले भी मैं उठ नहीं सकती जितना मुझसे होता है। पहले मैं पूरा अमृत वेला किया करती थी 1-1.5 घंटा, मगर अभी मैं सिर्फ मंत्र जाप करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जैसा करवाएंगे और जितना करवाना होगा ये तो आप ही के हाथ में है। मैं कौन होती हूँ करने वाली। मेरे गुरु का, मेरे इष्ट देवता आप कृपा करें। गुरु जी ने मुझे संदेश भेजा था कि मैं और काली माता
तेरे घर आएंगे और तेरा सब दुख दर्द दूर करेंगे। बस अब मुझे उन्हीं का आसरा है, गुरु जी का ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यही मेरा सत्संग है संगत जी। ये तो मैं नहीं कहूँगी कि मैं वाणी को विराम दूं, क्योंकि मैंने अभी एक सत्संग में सुना था कि ऐसा नहीं कहा जाता। गुरु जी तो आगे जब सत्संग करवाएंगे मैं करूँगी, जितने सत्संग करवाएंगे गुरु जी मैं करूँगी। बस मेरे घर में सभी को अपना आशीर्वाद दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।